Before starting numericals, we just revise those integrated rate laws for zero and first order reaction that we derived yesterday. For zero order reaction, as you know that rate law can be written as rate is equal to K, means the concentration of reactants has no significance here. Like rate is directly equal to the rate constant. Okay. And in first order reaction, rate is equal to K and 1 power of concentration term of reactant. And integrated rate law can be written concentration of a reactant at a particular time t is equal to minus kt plus initial concentration. मतलब start आपने किस concentration से किया था, that is a naught. And in first order reaction, the same relationship is there, but in terms of log to the base e, the concentration of A at a time t is equal to minus Kt plus log to the base E or natural log of initial concentration. Okay. And in terms of, because natural log values are not generally used, तो हम लोग log to the base 10 वाली जो values use कर रहे हैं उसके terms में अगर हम इसको convert करते हैं equation को, तो numerical form will use, we have to use this log form to the base 10 is in numerical. So you can also note down this इक्वेशन नेचुरल लॉ को कन्वर्ट करके अगर आप लॉग टू द बेस 10 a इज इक्वल टू माइनस के टी ओवर, क्योंकि आप यहाँ दो जगह पे मल्टीप्लाई करोगे दोनों नेचुरल लॉ को कन्वर्ट करने के लिए, तो और उसके बाद आप इन दोनों दो जगहों पे रखने से बेटर अगर हम एक ही जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो हियर इट विल कम इन डिनोमिनेटर. तो माइनस के टी ओवर 2.303 ये टर्म हो गई पूरी आपकी ये वाली, एंड प्लस natural log to the base 10 of a naught. So this relationship can be applied in numericals. Okay. And plot a versus t gives a straight line. ठीक है. Intercept आपको a naught की वैल्यू देता है और माइनस नेगेटिव स्लोप जो होगा that will give the value of k. And same graph can be obtained when we plot values of log to the base ea versus t. And if we plot this curve log to the base 10a versus t, तो आपको मैंने कल भी बताया था the slope will give you the value of minus k over 2.303. ठीक है. Intercept will give the value of this. तो half life period for zero order is t half is equal to a naught over 2k, means t half is directly dependent on initial concentration. Here t half is a constant value for the entire reaction because it doesn't depend on the initial concentration. तो किसी भी concentration से आप start करो, t half value is dependent only on k, not on the concentration. So let us start with numericals. So first question is, consider the reaction A to B. If A naught is 5 mole, molar means mole per liter, and K is 1.0 10 raised to the power minus 2. Calculate A after 30 seconds, assuming the reaction is of K की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, बट यूनिट्स नहीं दिए हैं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों फॉर्मेट में इसको यूज करना है, जीरो ऑर्डर के लिए भी निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी. ठीक है. तो कैलकुलेट करना है हमने कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 30 सेकेंड. ठीक है. और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, रेट कांस्टेंट इज आल्सो गिवन. यस, who will tell which formula is to be applied for zero order reaction first? At is equal to a naught minus a. Yeah, so that a is equal to minus kt plus a naught, या whatever in what form you can use this equation. तो zero order equation जो अभी हमने integrated rate law में derive किया है, concentration of a is equal to minus kt plus a naught, directly इसी equation में put कर दो values. k आपके पास है 1 10 raised to the minus 2, t is 30 second और a naught आपको 5 molar given है, तो just solve it. It will be 4.7 मोल पर लीटर. ठीक है. अब सेम ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी है लॉग टू द बेस 10 में. तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. ठीक है. उसके बाद आपके पास k की वैल्यू, k और t का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आया था हमारा ये 0.3 था, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस log of 5. So this value I have written in this format,
0.3 मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये इस दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब KT की वैल्यू है, ठीक है, ओवर 2.303 प्लस log ऑफ 5, log ऑफ 5। अब बेटा थोड़ा सा एक चीज याद रखो, log 2 3 4 5, 4 तो log 2 का जस्ट डबल होता है वैल्यू, 2 3 5 10 एटलीस्ट कुछ वैल्यूज आप टिप्स पे रखो, तो आप एग्जाम में ना आपको लॉग टेबल भी नहीं देखना पड़ेगा। ये 3-4 बहुत कॉमन सी वैल्यूज है एंड जनरली बहुत यूज होती है न्यूमेरिकल्स में। बोर्ड में न्यूमेरिकल्स भी इतने डिफिकल्ट लॉग वैल्यूज वाले कम ही होते हैं, क्योंकि वो जनरली कई बार नहीं भी प्रोवाइड होती लॉग टेबल्स। तो इट्स बेटर इफ यू मेमोराइज few simple log values। तो log 5 is 0.6989 होता है, ये पुट किया आपने, और ये टर्म नेगेटिव थी आपकी, ये टर्म पॉजिटिव है, तो आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स 0.5687। ये आपके पास वैल्यू आ रही है log a की, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है a की, सिर्फ आपको तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, उसका log नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, a निकालने के लिए इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। तो यू कैन राइट concentration or you can say A is equal to anti-log of 0.5687। अब एंटी-लॉग चेक करने के लिए आपको जो एंटी-लॉग वाली टेबल है उसमें जीरो के लिए कुछ नहीं करना, अपने डेसिमल के बाद वाला नंबर ही हम लॉग टेबल एंटी-लॉग टेबल में चेक करते हैं। आई एक्सप्लेन दिस लास्ट ईयर ऑल्सो। तो आपको उस टेबल में 2 डिजिट्स जो हैं वो आपको फर्स्ट कॉलम में मिल जाती हैं। 56 का एंटी-लॉग चेक करेंगे हम, नॉट 56, 0.56, वहां पे डेसिमल के बाद ही इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको नंबर 0.56 का एंटी लॉग चेक करोगे 8th कॉलम में। उसके बाद 7th जो मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू होगी उसको ऐड कर देना इसमें। तो ये जो वैल्यू आती है दैट इज लाइक हियर इट इज नॉट सॉल्व, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको मतलब 3704 वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, बट आपको वहां डेसिमल नहीं होगा। डेसिमल आपको याद रखना है, जो भी एंटीलॉग की वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज टू बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब फर्स्ट नंबर के बाद अपने आप डेसिमल डाल दो। आपको लॉग टेबल एंटीलॉग टेबल में डेसिमल नहीं मिलेगा, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 3704 जब सारा सॉल्व कर लोगे। मतलब 7 मीन डिफरेंस वाली वैल्यू 8 इस 56 के 8th कॉलम में जो वैल्यू होगी, मतलब वो आई थिंक 369 समथिंग है और 7 पे आता है वहां पे 6, तो जब 8 है 368 है इसकी वैल्यू, और इसमें ये ऐड करोगे मतलब इट टर्न्स आउट टू बी 3704। आपको डेसिमल पॉइंट खुद प्लेस करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। और जितने ये लेफ्ट टू द डेसिमल नंबर्स है, अगर यहाँ पे कोई होल नंबर है तो वो उसका एंटीलॉग कभी भी नहीं देखना। अभी तो यहाँ 0 था, अगर यहाँ पे 2 होता 3 होता तब भी आपने एंटीलॉग सिर्फ डेसिमल के बाद का देखना है। वो जो नंबर है दैट नंबर इज रिटन इन पार्स, मतलब 10 रेज टू दी पार आप उस नंबर को प्लेस कर दोगे। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव पार, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ 0 है तो 10 रेज टू दी पार 0 आ जाएगा साथ में, तो इट्स नॉट रिटर्न बिकॉज जरूरत नहीं है 10 रेज टू दी पार 0 लिखने की। तो एंटीलॉग अगर 0 पॉइंट समथिंग का है तो जो भी इस नंबर का एंटीलॉग है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, नो पार इज टू बी यूज्ड। बट इफ इट इज 1.5687 2 पॉइंट, मतलब यहाँ होल नंबर कोई भी होता लेफ्ट टू डेसिमल, उतनी ही 10 की पार्स लिख देनी आपने। तो दिस इज हाउ वी check antilog and we write the values of antilog. So this answer is 3.704. Any student who has doubt in this numerical, इसको अगर आप नॉर्मल वो फॉर्मूला से भी कर सकते हो कि k is equal to 2.303 over t log of a naught over a, पर उसमें फिर आपको इक्वेशन को log a के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और उसमें बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, उसको माइनस में करना भूल जाएंगे, whatever solution में प्रॉब्लम करते हैं। तो इट्स बेटर if concentration at a particular time is asked for first order reaction, remember to use this equation। इसको आपको फर्दर खुद सॉल्व नहीं करना पड़ेगा a को अलग करने के लिए, ठीक है। ये यहीं पर डायरेक्टली a के लिए ही है इक्वेशन, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन, इट बिकम्स इजियर फॉर यू, ठीक है। लॉग की वैल्यू तो प्लेस वहां पे भी करनी पड़ेगी, बट वहां वो लॉग ए फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने में बच्चे बहुत साइंस की गड़बड़ कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की। तो इट्स बेटर यू यूज दिस इक्वेशन फॉर सॉल्विंग फॉर ए if a is to be calculated, otherwise k और t के लिए तो वो solved equation is better, otherwise इसी को solve कर सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है। एनी डाउट इफ यू हैव। उसके बाद आपको जब log a की वैल्यू मिल गई है तो a निकालने के लिए उसका एंटी लॉग लेना है,
क्लियर? ये तो आपको दोनों ही फॉर्मूले से करना ही पड़ेगा, मतलब बिकॉज फ्रॉम एनी फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ log a ओनली. log a से a निकालने के लिए यू नीड टू टेक एंटी लॉग ऑफ दिस. एनी डाउट? नो? बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, रिस्पॉन्ड किया करो. No, ma'am, no one has raised hand. Okay, ma'am, thank you. Next question. A first order reaction has a rate constant 1.15 10 raised to the power minus 3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? I'll ask someone now. Archie, unmute yourself, beta. Archie, unmute and tell Yes, ma'am. to be used here. And so first of all, tell me what is to be calculated and which formula we need to use. What is to be calculated, beta? क्या find करना है यहाँ पे? Yes, can someone else tell? Archie is not there in the meeting, I think. From time. Yes, time is to be calculated. And Sanjana, unmute yourself. Which formula will apply? Sanjana, beta, which formula we need to apply here? अभी फॉर्मूले मैंने आपको टेबल में रिवाइज भी करवाए हैं. स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड लीविंग. इसमें भाग क्यों जाते हो अगर कोई क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट संजना बिकॉज 2 पार्टिसिपेंट्स आर लेस नाउ. समवन हैज लेफ्ट. यस संजना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम निकालना है. विच फॉर्मूला वी नीड टू यूज हियर? खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ. जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था वो वाला यूज करेंगे. हाँ जी बेटा, उसी को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम. के लिए आपको निकालना है यहाँ पे टी, तो टी के लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा. मतलब जो फाइनल इक्वेशंस मैंने आपको कल करवाई हैं वो फाइनल इक्वेशंस ही न्यूमेरिकल में यूज होती है. लास्ट न्यूमेरिकल में हमें ए फाइंड करना था, तो इसलिए मैंने सिंपल मतलब जो इक्वेशन स्टार्टिंग वाली थी उसको सिंप्लीफाई करके लॉग के बेस टू द बेस 10 में यूज किया. अदरवाइज ये फाइनल इक्वेशन है, इट कैन बी यूज्ड इन एनी न्यूमेरिकल फॉर्म, बट ए के लिए मैंने आपको वो यूज करवाई बिकॉज अदरवाइज यहाँ से फिर ए को आपने सेपरेट करना है, तो उसमें बच्चे बहुत साइन की मिस्टेक्स कर देते हैं. दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू टू use that simple equation over there to find A. But if you find T, तब आपको simple 2.303 over K log A naught over A. This formula is to be applied simply. ठीक है, अब इसमें वैल्यू K की आपके सामने रेट कांस्टेंट गिवन है. A naught क्या होगा बेटा? खुशी, what will be the value of A naught here? 5 gram. 5 gram. And A? 3 gram. गुड. तो सामने ही दिया हुआ क्वेश्चन में कि कितना रिड्यूस होगा, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 3 ग्राम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 ग्राम. अब कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल गिवन होती है बट फाइनल गिवन नहीं होती है. इस कुछ किसी और वे में होती है कि रिएक्शन इतने परसेंट कंप्लीट हुआ है, तो जितने परसेंट कंप्लीट हुआ है उतना परसेंट इनिशियल रिएक्टेंट का कंज्यूम हो चुका है. तो आपको फिर वो परसेंटेज निकाल के इसमें से माइनस करके जो लेफ्ट ओवर होगा दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम. तो इस तरह से थोड़ा सा आपको हिंट्स होंगे क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. बट हियर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन. एक्चुअली यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो इट डजेंट मैटर. आपको दोनों यूनिट्स जो हैं सेम अगर है तो नो प्रॉब्लम इज देयर. 5 ग्राम 3 ग्राम इसी का रेशो ले लो, नो प्रॉब्लम कि आपको मोल पर लीटर चाहिए. क्लियर? बिकॉज अभी आप फाइंड नहीं कर सकते. नो, नथिंग एल्स इज गिवन हियर.
क्योंकि रिएक्टेंट का कोई नेम नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू कैन नॉट फाइंड मोल पर लीटर, बट इफ इट इज गिवन इन ग्राम यू कैन यूज एज इट इज. तो K is this, A naught is 5 gram, A is 3 gram. Just put the values and log 5 और 3 को या तो आप पहले 5/3 सॉल्व करके 1 पॉइंट जो भी डेसिमल वैल्यू आ रही है उसका लॉग ले लो. बट अगर वो डिवीजन भी आपने नहीं करना तो मैंने आपको कल भी बताया था log 5 माइनस log 3 लिख लेना इसको. 5 की वैल्यू 0.6989, log 3 की वैल्यू 0.4771. यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. मतलब आपको ये 5/3 डिवीजन भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समटाइम्स बच्चे, अभी ये तो इजी डिवीजन है, थोड़े बहुत लार्ज नंबर्स होते तो उसमें भी कुछ गलतियां होती हैं. तो इट्स बेटर यू डायरेक्टली चेक द वैल्यूज ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म्स फ्रॉम लॉग टेबल और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, और आप उसके बाद ये टर्म सॉल्व करके अलग से उसमें ये टर्म मल्टीप्लाई कर दो. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम t as 444 seconds here. ठीक है? Any doubt in this question? बोलते हो नहीं, जब डाउट पूछो, जब पूछते हैं क्या फॉर्मूला लगाना है क्या, तो फिर तब भी नहीं कुछ पता होता बेटा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू मस्ट टेल. किसको बताओगे फिर? टीचर्स को ही नहीं पूछोगे तो. ठीक है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. Yes, next one, time required to decompose SO2 Cl2, that is the sulfonyl chloride, to half of its initial amount is 60 minutes. मतलब ये जो स्टेटमेंट है, टाइम जितना लग रहा है इस थायोनाइल क्लोराइड को अपनी हाफ कॉन्सेंट्रेशन तक, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम होने में, दैट इज 60 मिनट. मतलब हो गया ये इसका हाफ लाइफ टाइम है. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. Pragun beta, what is the formula to find or to relate half life and K for first order? Half life or K? Ma'am, T half is equal to 0.693 upon K. Yes, good. So this direct simple formula is to be applied here. For first order reaction, K is equal to 0.693 over T half, और आपको T half given है 60 minutes. ठीक है? आपको ये भी मैंने बताया कि काइनेटिक्स में इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट ऑफ टाइम. अदरवाइज वैसे सेकंड SI यूनिट है, बट अगर मेंशन नहीं है और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में नहीं है तो आप जिस यूनिट में टाइम गिवन है उसी को यूज करो एंड गिव द आंसर इन दैट टर्म ओनली. 1.155 10⁻⁻² पर मिनट पे भी छोड़ सकते हो, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड तो वो कन्वर्जन बाद में भी कर सकते हो, नहीं तो पहले ही कर लो. यहाँ पे 60 मिनट्स के सेकंड्स बना सकते हो, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन काइनेटिक्स अंटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि सेकंड्स में ही निकालना है. ठीक है? एंड यूनिट ठीक से होना चाहिए आपका. यूनिट, अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K का यूनिट आपको याद रखना चाहिए, टाइम में ही आएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैंसिल हो जाती है. तो यूनिट्स अगर रॉन्ग हुए तो हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर दैट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Decomposition of ammonia on platinum surface is a zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 10⁻⁻⁴ mole inverse liter second inverse? Yes, who will tell what to do? जिसको भी पता है, you can unmute yourself and tell. I will not ask by name. All of these are NCERT back exercises. If someone has tried. Nishant, can you tell beta? Same as value of K. Yeah, very good. Rate of reaction will be equal to K because reaction is zero order. But वो rate of reaction होगा बेटा. We need to find rates of production of N2 and H2. तो उसके लिए आपको जो हमने, if you remember first day I told you how to write rate, average rate या जो हमारी instantaneous rate है उसको हम
अलग अलग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की टर्म में कैसे लिखते हैं वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को यूज करके करना है। तो एक चीज आपकी करेक्ट है कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन बोला कि वो के इक्वल होगा, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू के होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के इंडिपेंडेंट होती है रेट। बट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 विल नॉट बी इक्वल टू द रेट, वो डिपेंड करेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कितने हैं। रेट मतलब N2 कितना मोल्स बन रहा है और H2 कितना मोल्स। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ अमोनिया डिकम्पोज करके आप 1 मोल N2 एंड 3 मोल्स H2 फॉर्म कर रहे हो। तो रेट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। अगर हम NH3 के डिसअपियरेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस हाफ DNH3 ओवर DT, N2 का 1 मोल ही बन रहा है तो उसके लिए कोई यूज नहीं करना, अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है वहां पे, तो DN2 ओवर DT एंड हाइड्रोजन 3 मोल्स आर फॉर्म, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/3 ऑफ DH2 ओवर DT। और ये जो टर्म्स होती हैं बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दैट डे आल्सो आई टोल्ड कि दीज टर्म्स आर DN2 over DT means rate of production of nitrogen. This DH2 over DT is rate of production of hydrogen, कि किस रेट पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेट पे नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस इज नोन एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पूछा होता कि किस रेट पे अमोनिया डिसअपियर हो रहा है, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ये डबल, मतलब अब ये वैल्यू निकालनी है तो ये नंबर उस तरफ ले जाओ क्योंकि आपके पास रेट की वैल्यू है अभी, ठीक है। तो DN2 विल बी इक्वल टू रेट बिकॉज N2 1 मोल ही बन रहा है, क्योंकि रेट हमेशा 1 मोल के लिए निकाली हुई होती है। तो बाकियों के जितने मोल्स हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है। अगर इनकी रेट्स गिवन है तो इनको डिवाइड करके आप रेट निकाल सकते हो, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, ये चीज निकालनी है, तब आप इस नंबर से रेट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो। बट हियर नाइट्रोजन के लिए कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन इज जस्ट 1 मोल हियर। फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन you need to use this number, ये आपकी ये वैल्यू निकालनी है, this you have rate, तो 3 multiplied by rate will be equal to DH2 over DT. So how we solve it? For a zero order reaction, always remember if K is given, that will be equal to the overall rate of reaction. So rate of reaction is equal to K, and rate हो गया आपके पास 2.5 10 raised to the power minus 4 mole per liter per second. Now rate of production of N2 is given by this term DN2 over DT, और इसको रेट से रिलेट करोगे आप इस इक्वेशन से, तो ये रेट इज इक्वल टू DN2 ओवर DT, ठीक है। तो जितना रेट ऑफ रिएक्शन है उतना ही रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी होगा, दैट विल बी सेम। बट फॉर हाइड्रोजन, एज यू नो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर फॉर्मिंग, तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द रेट, ठीक है। तो रेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट the rate of production of hydrogen. Yes, समझ में आ गया question? Can you tell me, or some doubts are there? First, Ma'am? if rates of production of a particular product or rate of disappearance of a particular reactant, मतलब अलग अलग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अपीयर डिसअपियर होने की रेट आपने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको उसको रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट करने के लिए ये इक्वेशन बनानी होगी। फॉर दैट यू रिक्वायर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन जो भी गिवन होगा, समटाइम्स तो इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट इफ इट इज नॉट गिवन यू नीड टू फ्रेम द बैलेंस्ड इक्वेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिलीज होगी, तो सिंपल सी रिएक्शन है, फ्रेम हो सकती है अपने आप। उसके बाद उसके लिए ये रेट का रिलेशन आपको इस तरह का एक मतलब रिएक्शन से ये स्टेटमेंट फ्रेम करने, एक्सप्रेशन फ्रेम करना इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Then check which order of the reaction is given here. तो order is 0 है तो rate will be directly equal to K. उसके बाद आप relate कर दो, rate आपके पास आ गई। अब ये वैल्यू निकालनी है या ये निकालनी है, ये निकालनी है, ये नंबर्स जरूर याद रखना आपको। If these values are to be calculated, तो these numbers are used to multiply with rate. और अगर ये वैल्यूज गिवन है, रेट निकालनी होती है तो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जिस रेट पे अगर कोई प्रोडक्ट 3 टाइम्स बना है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी 1/3 हो जाती है,
क्योंकि वो खुद तो 3 मोल बन रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन हम 1 मोल के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पर ये चीज फाइंड करनी थी, इसलिए हमने 3 से रेट को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज 3 टाइम्स, हाइड्रोजन के बनने की रेट 3 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, half life for radioactive decay of carbon 14। कार्बन 14 आपको पता है आइसोटोप ऑफ कार्बन है जो रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, C12 इज नॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। इतने साल बाद कार्बन 14 अपने आप हाफ हो जाता है नेचर में। एंड आर्कियोलॉजिकल जस्ट artifact containing wood had only 80% of carbon 14 found in a living tree। एक लिविंग ट्री में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वो एक्चुअली C14 पता है किस लिए यूज होता है, फॉसिल्स या फिर कोई भी बहुत पुराना कोई ऑब्जेक्ट है जो कितने टाइम से, जिसको हम फॉसिल भी कह सकते हैं, उसकी एज फाइंड करने में। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग, अगर कभी टर्म सुना हो किसी जगह पे, कार्बन डेटिंग होती है कि कार्बन 14 का कितना परसेंटेज अभी इस टाइम पे उस फॉसिल में प्रेजेंट है, उससे उसकी एज फाइंड। तो यहाँ पर हमने यही करनी है कि एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, की वो ट्री कितना पुराना है, आपने उसको मतलब वुड मिला है यहाँ पे, तो इस ट्री की जो एज अगर हम निकालेंगे, उसको चेक किया है 80% कार्बन उसमें अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। और तो इतने सालों में तो हाफ रह जाता 5730, तो इतनी एज तो अभी नहीं हुई क्योंकि अभी 80% कार्बन 14 है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिंट तो है कि इससे कम ही होगा, ठीक है। अब वो कैसे निकालना है आपने, कैन एनीवन गेस हाउ टू कैलकुलेट दिस? मतलब निकालना क्या हमें, हमारे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशंस हैं उसमें k होता है, t होता है, a नॉट होता है, a होता है, 4 चीजें होती हैं। विच वेरिएबल इज टू बी कैलकुलेटेड हियर? टाइम t। एज का मतलब वही टाइम ही निकालना कि कितने ईयर्स पुराना है ये लिविंग ट्री, क्लियर। तो t इज टू बी कैलकुलेटेड। और एक चीज बेटा याद रखो, जितनी भी रेडियो एक्टिव डिकेज हैं, डिके का मतलब खुद ही अपने आप में सब्सटेंस डिके हो रहा है, अभी रिएक्शन रेडियो एक्टिव किसी और के साथ रिएक्शन नहीं हो रही। रेडियो एक्टिव डिके मीन्स द सब्सटेंस इज ऑटोमेटिकली डिकेइंग इटसेल्फ बाय emitting certain radiations, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। एंड ऑलवेज रिमेंबर रेडियोएक्टिव डिके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चाहे वो नेचुरली हो रहा है अपने आप नेचर में या फिर हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं। इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स ओन कॉन्सेंट्रेशन, और वो भी वन टर्म और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो कोई भी क्वेश्चन रेडियो एक्टिव डिके के लिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर उसमें वो ऑर्डर नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये एक जो 2 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है, नो ऑर्डर इज गिवन हियर। तो ये चीज याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, radioactive decay whether natural or artificial are of first order, ठीक है। तो this I have written here, radioactive decay always follow first order kinetics। तो इसको यूज करके आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रिलेशन है, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो t हाफ की है, k की नहीं है, एंड यू रिक्वायर k फॉर कैलकुलेटिंग टाइम। तो k निकालने के लिए आपको t हाफ यूज करके पहले k फाइंड कर लेना है। तो 0.693 over 5730, this is the value of k here। Now you will put the formula t is equal to 2.303 over k log a naught over a। आपको फाइंड करना है t, you have the value of k now, this one। a naught कितना लेंगे बेटा यहाँ पे? Who will tell values of a naught and a? 180। वेरी गुड। अब देखो 80% अभी रिमेनिंग है, अगर ये लिखा होता कि 80% इज कंज्यूम्ड, कि 80% कार्बन खत्म हो चुका है, तो 20 हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से अगर पढ़ोगे ना, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ए जो है ना अभी कितना बचा है उसकी वैल्यू है, और ए नॉट तो इनिशियल है। तो अगर परसेंटेज टर्म में गिवन है, ए नॉट आपको 100 ही लेना है, और ये ए डिपेंड करेगा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ कंज्यूम हुआ होता 80%, तब आपको 100 माइनस 80 20 करना था, बट दे आर सेइंग दैट इट हैड ओनली 80%, मतलब 80% अभी पड़ा है उसके अंदर कार्बन, तो दिस विल बी 80%। मींस concentration left after time t is to be used as a, and initial concentration percentage वालों के लिए हमेशा 100 खुद ही ले लेना, क्वेश्चन में नहीं दिखेगी आपको।
तो a naught is equal to 100 and a is equal to 80. t is equal to 2.303 over this k value and log 100 minus log 80 कर लो, log 100 की वैल्यू 2 होती है एंड उसमें से आप 2 में से log 80 की जो वैल्यू है 1.9030 ये माइनस कर दो. तो अदरवाइज दूसरा मेथड आपको बताया मैंने, इसको डिवीजन करके सॉल्व करके एक का ही लॉग चेक करना पड़ेगा. बट लॉग 10 1 होता है, लॉग 100 2 होता है, लॉग 1000 3 होता है. ये चीजें टिप्स पे हैं तो इजी हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो. अदरवाइज इट्स योर विश हाउ सॉल्व, आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जैसे भी सॉल्व करो. बट मैं आपको थोड़ा इजी बता रही हूँ कि डिवीजन भी फिर गड़बड़ करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में. जब सॉल्यूशंस करते हो कई बार डेसिमल में ही गड़बड़ आ जाता है और एक भी डेसिमल पॉइंट इधर उधर हुआ तो सारी लॉग वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, योर आंसर विल बिकम रॉन्ग. तो इट्स बेटर इफ यू सॉल्व दैट दीज टू टर्म्स बाय सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो दिस t is 1845 years. ठीक है, इतने years लाइफ है उस ट्री की. तो दिस इज हाउ these archaeological department calculate ages of fossils and any जो भी जैसे लिविंग ट्री की कोई एज निकालनी है तो whatever, because these things present कार्बन डेटिंग के सैंपल यूज करके भी निकाल लेते हैं, अदरवाइज नेचुरली इट इज प्रेजेंट ओवर देयर. नेक्स्ट इज रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. जस्ट ये मुझे विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट ऊपर, यहाँ पर बात चल रही है कोई whatever. Reaction is first order with the write the differential rate equation. How is the rate affected on increasing the concentration of B? What is written beta? Can you tell after B? 3 times. 3 times. And how is the rate affected when concentration of both A and B is doubled? Yes, this is very simple question. This type of question we have already done day before yesterday. So what will be the differential rate equation for this first order reaction? I'll ask Jesse, can you tell? पहले तो simple rate law expression क्या होगा बेटा first order reaction? What is the complete statement, Jesse? Read it out and just tell. A reaction is first order in A and second order in B. Okay. First Write order. differential rate equation. First of all, what is the rate law expression? Simple rate law expression. Can you tell? Ln A is equal to minus KT plus ln A naught. No, beta, that is the first order equation integrated form. I am asking simple rate law expression हम कैसे लिखेंगे इस स्टेटमेंट का कि एक रिएक्शन A के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर है, B के टर्म में सेकंड ऑर्डर है. इसके लिए आप आपको रेट लॉ लिखना है, सिंपल रेट लॉ विदाउट डिफरेंशियल विदाउट इंटीग्रेशन. मतलब डिफरेंशियल या इंटीग्रल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ अभी. आई एम आस्किंग यू सिंपली टू मेंशन रेट. KA. ए तो ए के ऑर्डर रिस्पेक्ट में हुई, बी के रिस्पेक्ट में KB. ए बी के रेस्पेक्ट में बेटा 2 है ऑर्डर, तो बी स्क्वायर आएगा ना. तो k इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू k a मतलब रेज टू द पावर 1 या सिंपली a ही कर दो एंड b स्क्वायर. तो दिस इज द नॉर्मल रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो उसको डिफरेंशियल फॉर्म में करने के लिए आप माइनस डी आर ओवर डी टी कर दो. आर में भी रिएक्टेंट या आर की जगह एक्स भी कुछ भी लिख सकते हो, एनी रिएक्टेंट अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो ठीक है, बट अदरवाइज हम जनरली क्या करते हैं डी आर ओवर डी टी टर्म यूज कर लेते हैं. माइनस डी आर ओवर डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा. अगर आप सिंपली रेट लिखते हो तो वो नॉर्मल रेट लॉ एक्सप्रेशन है. तो दिस इज हाउ वी कैन राइट इट हियर. यहाँ dx ओवर dt लिया, एक मिनट, ये मैंने एक्चुअली एक बुक से उठाई थी पिक, ये सॉरी दिस इज रॉन्ग आई थिंक. ये आपको माइनस लेना है, यहाँ पे साइन नहीं लगाया इन्होंने क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म में हमेशा रेट नेगेटिव में जाती है. मतलब रेट नेगेटिव नहीं होती, इट शोज दैट रिएक्टेंट्स आर गेटिंग डिक्रीज्ड. तो माइनस dx कर दो या dr कर दो, dr ओवर dt इज इक्वल टू k a b स्क्वायर. दिस इज हाउ वी कैन राइट. ये चीज बेटा बहुत ध्यान से आपने, बच्चे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है राइट द डिफरेंशियल फॉर्म, तब भी यहाँ पे रेट ही लिखते हैं. इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का मतलब आपको यही चीज तो आपको बता रही है कि ये मतलब इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन फॉर्म वाला जो इक्वेशन अगर इसका होगा वो आपको वैसे अभी सिलेबस में है नहीं, सेकंड ऑर्डर
और थर्ड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बन गई ना टोटल। बट आपको अगर इंटीग्रल फॉर्म पूछेंगे तो जीरो या फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछेंगे। तो डिफरेंशियल आप किसी का भी बना सकते हो, माइनस dr/dt लगाओ इज इक्वल टू k, जितना ऑर्डर जिसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, b के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। तो दिस इज हाउ रेट लॉ एक्सप्रेशन। और अगर डिफरेंशियल नहीं लिखा हुआ, इट इज ओनली आस्क्ड टू राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो यहाँ सिंपली रेट लिख दो, रेट इज इक्वल टू k a b स्क्वायर। क्लियर? अब आपसे पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी को 3 टाइम किया आपने, तो न्यू रेट आपकी रेट डैश कर दो या आर डैश कर दो, के ए एज इट इज रहेगा, बी स्क्वायर है तो 3b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 टाइम्स रेट इंक्रीज हो गया। एंड हाउ इज द रेट अफेक्टेड फ्रॉम द व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इज डबल। तो डबल, ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया, तो ए के लिए तो डबल ही होगी रेट, बी के टर्म्स में 4 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि वो उसका पावर 2 है। ठीक है, तो 4 2 जा 8 टाइम्स टोटल रेट अफेक्ट होगी। बस सबसे इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस में यही होता है कि अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा है तो किस फॉर्म में पूछा है। समटाइम्स दे आस्क डिफरेंशियल फॉर्म, समटाइम्स दे सिंपली राइट गिव रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको सिंपली आप रेट लिख सकते हो, डिफरेंशियल फॉर्म के लिए आपको ये माइनस dr/dt लिखना पड़ेगा यहाँ पे। Any doubt in this now? Jesse, is it clear? Yes, ma'am. बेटा जो आप इक्वेशन बता रहे हो ना वो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, तो इंटीग्रेशन वाली फॉर्म अगर पूछिए तो बताओ, वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बताया, कल भी मैंने ये बताया था कि जनरली एक्सप्रेस जो की जाती है रेट, वो सिंपल रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम करते हैं, बट टू फाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन के ए नॉट ए टी, इसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलता आपको डिफरेंशियल फॉर्म में, तो उसको इजी करने के लिए उनको इंटीग्रेट किया है। जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हायर लेवल पे आपको सारे ऑर्डर्स की रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल जाएंगे। बट इफ इट इज आस्क्ड टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये वाले एक्सप्रेशन ही देना है, रेट कांस्टेंट और उसके साथ किसकी कितनी पार लिखी हुई है क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए है, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए रेट लॉ को। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। टुमारो यू विल बी हैविंग पीटीएम, आई थिंक, तो नो क्लास विल बी देयर। From Monday we'll start with next topic, and today I'll give few questions as homework because many numericals are there in NCERT back exercises. Few I have discussed, मैंने हर एक type के questions ले लिए हैं, but still if you have any doubt in any question, those I'll give as homework. At least try किया करो questions, चाहे like अपनी रफ नोटबुक में करो, जिस भी चीज में करो, but whenever you try तो you will get doubts, otherwise तो doubts होंगे नहीं, पता ही नहीं लगेगा क्या करना। ठीक है, solve